कोई आया भी दिख जाएगा वो ऐसे आपको People are already saying hi. Hi. I guess we can wait for Volume. I am not speaking anything, but अगर आपको volume में problem हो रही है तो please tell me so I can do some adjustment. Looks like the volume is fine. Hi everyone. Hello. Yes, a lot of people are joining now. So we'll wait for another, let's say 2 minutes for some more people to join, and then maybe then we can start with the cooking part. Please be a bit louder. So. Yes, I will be. If this volume is perfect. प्लीज़ लेट मी नो अगर आप मेरे को ढंग से सुन पा रहे हैं तो या मुझे अपनी वॉल्यूम थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी. Volume is fine. Thank you. Volume is fine. Thank you. Some people are saying can't hear. Some people are saying hear louder, please. So I guess you have to. So I'm not speaking anything right now, but it's just the testing thing. If you can hear me properly, then please let me know. And if you still can't hear this much of pitch, then please share. I'll increase the volume. The audio needs adjustment, it's saying. Okay, I'll just check. Is it fine now? Yeah, looks like it's fine. A lot of people are saying fine. Volume is fine, yeah. Oh, okay, perfect. So I'll speak in this pitch then. I think this is the pitch I think सबके comfortable है. Yes, you're audible. There's still one odd sentence is saying that you're still a bit low, but in volume. But I would say that just keep your volume up. Okay. I'll try to keep my volume up as much as possible for you, so that at least I'm audible, because it's important in the cooking part. I think हम 1 minute और wait कर लेते हैं बाकी सब के लिए, and then we'll start with the introduction part. Or maybe we should start because we have a limited time. So hi guys, my name is Palak and welcome to my kitchen. Today I will be sharing one of my favorite version of paneer recipe. The thing is that when lockdown happened, मुझे बहुत ही बाहर खाने की craving हो रही थी, but of course नहीं खा सकते थे because we have to follow certain rules and regulation and precautions के लिए भी. So I thought, why not to cook something घर पे with very basic ingredients and which should not take a lot of time and a lot of efforts to make, and उसका taste at least उतना तो similar होना चाहिए जो हम बाहर खाते हैं. So that was my idea, and I'm really excited to share this recipe with you all today. And I also want to thank Amul for bringing this opportunity to me and giving this platform where I can share something that I'm really passionate about. I also have an Instagram page with the name of global_platter, जहाँ पे मैं weekly basis पे I keep posting recipes which are very easy, very simple and also healthy.
सो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram because you will get all the updates related to my recipes and my cooking there. So also I would like to thank my cameraman today, my husband, who will be helping me with the video thing and taking all your questions. So let's get started with the cooking part. मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि क्या क्या ingredients आपको चाहिए and then we'll finally start with the cooking thing. Viewers are asking that what are you going to make? Oh yeah, I'll be making malai paneer, and I'm sorry if I missed it, but this is my version of malai paneer and I hope you guys will also like it. So let's start with the ingredient stuff. So पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से खड़े मसाले आपको चाहिए, खड़े मसाले या होल स्पाइसेस. So you need black pepper and you need like 4 to 5 of cloves या and then 4 छोटी इलायची and 1 बड़ी इलायची. हम 2 cinnamon stick means दालचीनी यूज़ करेंगे and 1 लाल इलायची लाल मिर्च. Then with the powder ingredients I will be only using धनिया powder, लाल मिर्च, salt of course and जीरा पाउडर. नाउ मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप इसी जीरे को थोड़ा सा रोस्ट करके इसका पाउडर बना देते हैं तो दैट विल गिव यू मोर फ्लेवर देन दी जो आप रेडीमेड बाहर से लेकर आते हैं. सो ये उसी का है. सो मैंने इसको रोस्ट कर दिया था, मैं हमेशा वैसे ही यूज़ करती हूँ. सो मैंने इसको रोस्ट कर दिया था एंड ये वही पाउडर है. नाउ विद और चीज़ें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है 1 बड़ी प्याज विच इज़ चॉप्ड अनियन एंड टोमेटो प्यूरी. नाउ लेट्स से अगर आपके पास टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आई विल से आप टमाटो को थोड़ा सा घी में कुक करके उसके बाद उसका पेस्ट बना लीजिए एंड इट विल बी अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ योर टोमेटो प्यूरी. आप देख सकते हो कि मैंने थोड़े से काजू को गर्म पानी में सोक करके रखा है. सो आई थिंक आप 10 से 15 मिनट सोक कर दीजिए एंड फिर उसका फाइन पेस्ट बना लीजिए. सो मैंने पेस्ट ऑलरेडी तैयार करके रखा है. थोड़ा ये थिक हो गया है बट आप इसमें एक स्पून या 2 स्पून ठंडा पानी डाल के इसको थोड़ा और क्रीमी कर सकते हैं. The last is this is your fresh cream. I have mixed fresh cream and malai also. अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो फुल क्रीम दूध जो आता है उसके ऊपर की जो मलाई होती है आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स ये होममेड जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट है. अगर आपके पास रेडीमेड भी है तो वो भी चल सकता है. So I think the viewers are requesting you to keep speaking in Hindi and just also they are asking if you can go through the khade masala once more. Yes, sure. So खड़े मसालों में मैंने and what you are making, sorry. Yeah, so I'll repeat. I'm making मलाई पनीर. खड़े मसालों में मैंने 6 लौंग लिए एंड ये काली मिर्च ली है. ये आप 10 से 12 काली मिर्च ले सकते हैं. फिर मैंने 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची ली है. खड़े मसालों में हम 2 दालचीनी छोटी आप देख सकते हो ये वाली दालचीनी का इस्तेमाल करेंगे और 1 ये जो सूखी लाल मिर्च होती है इसका इस्तेमाल करेंगे. सो अब मैं फाइनली बनाने जाने वाली हूँ. Viewers are asking which paste is it? So मैंने ये वाला पेस्ट मैंने अनियन और गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट है. ये होममेड पेस्ट है. अगर आपको रेडीमेड भी मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं. वो सेम टेस्ट देता है. ओके, मैं इसको घी में बनाऊंगी बट अगर आपके पास घी नहीं है एंड आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आई विल सजेस्ट यू गाइज कि आप बटर का इस्तेमाल करें एंड रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें बिकॉज जो कि इसकी ग्रेवी है दैट इज़ गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ क्रीमियर एंड जो घी है या जो बटर है दैट विल एड मोर फ्लेवर एंड रिचनेस देन एनी रिफाइंड ऑयल. सो मैं घी इस्तेमाल करूँगी बट आप
अगर आपके पास घी नहीं है, अगर आप रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं तो आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई विल बी टेकिंग एक बड़ी 2 से 2.5 टेबल स्पून मैं घी लूँगी और इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। व्यूअर्स आर बोल रहे हैं कि अगर आप बीच बीच में डिश का नाम लेते रहें क्योंकि वो ज्वाइन कर रहे हैं। जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मैं बनाने वाली हूँ मलाई पनीर एंड इंग्रेडिएंट्स मैं फिर से आपको बताती हूँ जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी, बट जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बनाऊँगी मलाई पनीर एंड ये आपका रेस्टोरेंट जैसा बन जाएगा एंड बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। सो अब मैं पहले तो ये छोटी दालचीनी इसको डाल देती हूँ। देन ये काली मिर्च है, मैंने 10 से 12 लिए होंगे, आप भी उतने ले सकते हैं। फिर मैंने लौंग ली है, मैंने 6 लौंग लिए हैं, आप 3 या 4 या 5 लौंग ले सकते हैं। एंड फिर मैं लेने वाली हूँ 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची। मैं ये सब बहुत ही लो फ्लेम पे कुक करने वाली हूँ। मैं फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा हाई नहीं करूँगी बिकॉज उससे जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो मैं उसको बहुत ही लो फ्लेम में कुक करूँगी। आप देख सकते हो, जस्ट इन केस। अब मैं इसमें डालने जाने वाली हूँ प्याज, जो कि मैंने चॉप करके रखी थी। जैसे ही आप प्याज को डालेंगे, आपके वो अरोमा, ये जो खड़े मसालों का होता है, जो खड़े मसालों की खुशबू होती है, उसको हम यू कैन फील जैसे ही आप प्याज को डालेंगे। मैं प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनने वाली हूँ। मैं प्याज को बहुत ही अच्छी तरीके से भूनने वाली हूँ जब तक ये प्रॉपर गोल्डन नहीं हो जाती है। सो आई वॉन्ट कि मेरा प्याज प्रॉपर गोल्डन हो, प्रॉपर गल जाए। मैं उसको बिल्कुल भी खड़ा नहीं रखूँगी। जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, हाय, माय नेम इज़ पलक एंड आई एम कुकिंग मलाई पनीर, जो कि टेस्ट करेगा आपका एग्जैक्टली सेम एज होटल वाला। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हुए हैं। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ घी डाला है। इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, 4 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची डाल के मैंने प्याज को डाला है। See, it's a very good initiative by Amul. इसके अंदर अब मैं एक ये जो लाल मिर्च थी, इसको अब डालूंगी। अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो अभी धीरे धीरे प्याज पकने लगी है। तो इसके कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा ये गोल्डन होने लगी है, आपको दिख जाएगा। एंड आपको बन चुकी है
एंड मैं इसके अंदर ये कैश्यू पेस्ट डालने वाली हूँ। मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। आई एम सॉरी गाइस, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था, सो इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैं कैश्यू को अभी थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि मैंने कच्चे काजू को ही उसका पेस्ट बना दिया था। सो मैं थोड़ा सा इसको प्याज के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। मुझे लगता है अभी भून गया है, थोड़ा ये ब्राउन होने लगा है। सो अब मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालने वाली हूँ। और ये जो काजू के पेस्ट के लम्स हैं ये इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। मैंने फ्लेम को अभी भी लो ही रखा है, मैंने उसको हाई नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लो पे आई कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द कुकिंग एंड जलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो पहले मैं इसके काजू के पेस्ट के जो लम्स हैं उसको हटा दूंगी। They're asking कौन सा खाना आप बना रहे हो? मैं मलाई पनीर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट कब डालेगा? हाँ, सो मैं मलाई पनीर बनाने वाली हूँ। सो अभी तक हमने खड़े मसाले डाले हैं और उसके अंदर प्याज को अच्छे से भुना है, ब्राउन कर दिया है। फिर मैंने काजू पेस्ट डाला है एंड अब मैंने टोमेटो प्यूरी डाली है। टोमेटो प्यूरी के साथ अब मैं पहले जो पाउडर्ड मसाले हैं वो डालूंगी। सो मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप देख सकते हो 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच एंड ये जीरा पाउडर भी 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता चले ज़्यादा नमक हो जाए तो उसको ठीक करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अब आप ये देख सकते हो कि मेरा जो ग्रेवी है वो धीरे धीरे थिक हो रहा है। they are saying आपने प्यूरी कितनी डाली है? मैंने प्यूरी आप मान लीजिए 200 से 250 ग्राम। अगर आपके पास 4 टमाटर है तो आप 4 टमाटर को घी में 4 टमाटर को काट के उसको घी में थोड़ा सा रोस्ट करके एंड फिर आप उसका प्यूरी बना लीजिए। अदरवाइज पूरा एक प्यूरी का जो पैकेट आता है टेट्रा पैक, आप छोटा वाला, आप उसको डाल दीजिए। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मेरा गार्लिक पेस्ट। एंड मैं फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूंगी। This thing the light is not okay, तो आप तो इसे लाइटिंग इम्प्रूव कर दो। आई थिंक यहाँ पे लाइट जल जाती है। आई होप कि अब बेटर है। I hope you're Sorry, better. guys. I'm really sorry guys, but this is the only lighting I get in my kitchen. अब आप देख सकते हो कि ये प्यूरी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। आई यूज टोमेटो प्यूरी क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप डायरेक्टली टमाटर को अपनी प्यूरी में डाल दोगे तो कलर वैसा नहीं आएगा, डार्क नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि ये थिक होने लगी है। इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी। They're asking कि क्वांटिटी कितनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट की? जिंजर गार्लिक पेस्ट की आप 2 बड़ी चम्मच ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर क्रीम डालने वाली हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आपके दूध में जो मलाई आती है आप वो डाल सकते हैं। और अगर आप
अगर आपकी घर पे मलाई बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती तो आप दूध भी डाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश क्रीम या फ्रेश दूध की जो मलाई होती है दैट विल ऐड मोर रिचनेस इन दिस। तो आपने जो पहले जो रोस्ट किया था वो काजू, वो कितनी देर रोस्ट किया था? मैंने 1 मिनट रोस्ट किया था क्योंकि मेरी प्याज ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मेरा पॉइंट था कि मैं काजू को ओवर रोस्ट या ओवर कुक ना कर दूं, इसलिए मैंने बहुत 1 मिनट 1 से 1.5 मिनट उसे रोस्ट किया होगा। आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा, आप देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली गोल्डन होने लगेगा। वंदना, आई एम सॉरी, आप कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंदना? आई थिंक ऊपर वो स्क्रॉल अप हो गया है। आई थिंक मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, आधे कप के अकॉर्डिंगली। जस्ट ये थोड़ा सा और पक जाए। आई थिंक मेरी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब जो मैं लास्ट 2 से 3 चीज़ें डालने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आई विल ऐड दिस कसूरी मेथी। आप देख सकते हो इस ग्रेवी का कलर एंड टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग बाहर होटल में खाते हैं। Vandana is asking what is the proper way of using cashews in gravy? अगर आपको कैश्यू को ग्रेवी में यूज़ करना है तो आप उसको 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दीजिए। एंड जैसे मैंने यहाँ पे प्याज भी चल गया। नहीं, ठीक है ठीक है। हाय गाइस, आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पा रहा था। सो अब अर्नब हुआ क्या? हाँ हुआ, खुला हो गया? नहीं ये चला, हाँ ये चल रहा है। यस, पीपल आर इन। सॉरी गाइस, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। सो अब मेरी प्याज बिल्कुल बन चुकी है एंड मैं इसके अंदर ये कैश्यू पेस्ट डालने वाली हूँ। मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। आई एम सॉरी गाइस, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था सो इसलिए मैं नहीं कर पाई। मैं कैश्यू को अभी थोड़ा सा पकाऊंगी क्योंकि मैंने कच्चे काजू को ही उसका पेस्ट बना दिया था। सो मैं थोड़ा सा इसको प्याज के साथ थोड़ा सा भूनूंगी। मुझे लगता है अभी भुन गया है, थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन होने लगा है। सो अब मैं इसके अंदर टोमेटो प्यूरी डालने वाली हूँ। और ये जो काजू के पेस्ट के लम्स हैं ये इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। मैंने फ्लेम को अभी भी लो ही रखा है, मैंने उसको हाई नहीं किया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लो पे आई कैन हैव अ बेटर कंट्रोल ऑन द कुकिंग एंड जलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो पहले मैं इसके काजू के पेस्ट के जो लम्स हैं उसको हटा दूंगी। They're asking कौन सा खाना आप बना रहे हो? मैं मलाई पनीर एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट कब डालेगा? हाँ, सो मैं मलाई पनीर बनाने वाली हूँ। सो अभी तक हमने खड़े मसाले डाले हैं और उसके अंदर प्याज को अच्छे से भुना है, ब्राउन कर दिया है।
फिर मैंने काजू पेस्ट डाला है एंड अब मैंने टोमेटो प्यूरी डाली है। टोमेटो प्यूरी के साथ अब मैं पहले जो पाउडर्ड मसाले हैं वो डालूंगी। सो मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आप देख सकते हो 2 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच एंड ये जीरा पाउडर भी 1 चम्मच। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पता चले ज़्यादा नमक हो जाए तो उसको ठीक करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। सो अब आप ये देख सकते हो कि मेरा जो ग्रेवी है वो धीरे धीरे थिक हो रहा है। आपने प्यूरी कितनी डाली है? मैंने प्यूरी आप मान लीजिए 200 से 250 ग्राम। अगर आपके पास 4 टमाटर है तो आप 4 टमाटर को घी में 4 टमाटर को काट के उसको घी में थोड़ा सा रोस्ट करके एंड फिर आप उसका प्यूरी बना लीजिए। अदरवाइज पूरा एक प्यूरी का जो पैकेट आता है टेट्रा पैक, आप छोटा वाला, आप उसको डाल दीजिए। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ मेरा गार्लिक पेस्ट। ओके, एंड मैं फिर से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दूंगी। दिस थिंग द लाइट इज नॉट ओके, तो आप तो इसे लाइटिंग इंप्रूव कर दो। आई थिंक यहाँ पे लाइट जल जाती है। आई होप कि अब बेटर है। I hope कि अब better है। I'm really sorry guys, but this is the only lighting I get in my kitchen. अब आप देख सकते हो कि ये प्यूरी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। I use टोमेटो प्यूरी क्योंकि उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप डायरेक्टली टमाटर को अपनी प्यूरी में डाल दोगे तो कलर वैसा नहीं आएगा, डार्क नहीं आएगा। आप देख सकते हो कि ये थिक होने लगी है। इसको मैं थोड़ा और पकाऊंगी। देयर आस्किंग की क्वांटिटी कितनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट की? जिंजर गार्लिक पेस्ट की आप 2 बड़ी चम्मच ले सकते हैं। अब मैं इसके अंदर क्रीम डालने वाली हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप के दूध में जो मलाई आती है आप वो डाल सकते हैं, और अगर आपकी घर पे मलाई बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती तो आप दूध भी डाल सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रेश क्रीम या फ्रेश दूध की जो मलाई होती है दैट विल ऐड मोर रिचनेस इन दिस। तो आपने जो पहले जो रोस्ट किया था वो काजू, वो कितनी देर रोस्ट किया था? मैंने 1 मिनट रोस्ट किया था क्योंकि मेरी प्याज ऑलरेडी बन चुकी थी। तो मेरा पॉइंट था कि मैं काजू को ओवर रोस्ट या ओवर कुक ना कर दूं, इसलिए मैंने बहुत 1 से 1.5 मिनट उसे रोस्ट किया होगा। आपको उसका कलर चेंज होता हुआ दिख जाएगा। आप देखोगे कि वो थोड़ा थोड़ा स्लाइटली गोल्डन होने लगेगा। वंदना, आई एम सॉरी, आप कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? वंदना, आई थिंक ऊपर वो स्क्रॉल अप हो गया है। आई थिंक मेरी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, आधे कप के अकॉर्डिंगली। जस्ट ये थोड़ा सा और पक जाए। आई थिंक मेरी ग्रेवी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है। अब जो मैं लास्ट 2 से 3 चीजें डालने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल ऐड दिस कसूरी मेथी। आप देख सकते हो इस ग्रेवी का कलर एंड टेक्सचर बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग बाहर होटल में खाते हैं। Vandana is asking what is the proper way of using cashews in gravy?
अगर आपको कैश्यू को ग्रेवी में यूज़ करना है तो आप उसको 15 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दीजिए। एंड जैसे मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। एंड जब ये थोड़े ठंडे हो जाए तो आप इसको पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट बनाते हुए मेक श्योर कि आप थोड़ा 1-2 चम्मच ठंडा पानी भी डाल दीजिए, बिकॉज वरना वो पेस्ट बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाएगा। ये बिल्कुल बन के तैयार हो गई है ग्रेवी। मैं इसको ओवर कुक नहीं करना चाहती हूँ, सो मैं बस क्लोज डाउन कर दूंगी क्योंकि ये इनफ गरम है। एंड अब मैं इसके अंदर पनीर डालने वाली हूँ। मेरे पनीर के चंक्स ऑलरेडी रेडी है, सो मुझे उसको कट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने 2 पैकेट पनीर लिया है इस ग्रेवी के लिए। एंड बहुत ही हल्के हाथ से इसको मिक्स करूँगी बिकॉज पनीर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड मैं नहीं चाहती कि पनीर का कोई भी पीस टूटे और उसकी भुर्जी बन जाए। सो या अगर आपको लगता है कि ये ग्रेवी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा थिक है तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, बट ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना वो टेस्ट को डिसॉल्व कर देगा। मैं इसको इस बर्तन में निकाल दूंगी टू यूज इट। सॉरी। सो या आई एम सॉरी, थोड़ा गंदा हो गया, बट टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। I hope you guys So I hope you guys like this recipe and आप इसे ट्राई करेंगे। अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी एंड इट्स वेरी सिंपल, मेरे को ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, सब कुछ रेडी था। मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ किए, कुछ बहुत ही इंग्रेडिएंट्स जो थे वो ईजिली आपके किचन में कभी भी आपको मिल जाएंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी देन प्लीज़ लेट मी नो and follow me on Instagram. My page name is global_platter. And I again want to thank Amul for giving this opportunity and taking this initiative जहाँ पे हम लोग मिलकर ये रेसिपी शेयर करते हैं and people can learn from different other people who have shared their recipes. We have some questions. Yes, please. Can you provide a written recipe of this, please? Yes, I will definitely put a written recipe on my page. I'll also try if I can share the written recipe on the Amul page. But I will soon share the written recipe on my Instagram page, which is global_platter. Hi guys, I'm really sorry. बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क इशू चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा, एंड मेरा फ़ोन गर्म हो गया एंड देन आई हैव टू स्टॉप इट. आई एम रियली सॉरी बट यू गाइज विल अंडरस्टैंड. आई होप यू लाइक दिस. आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ स्मॉल क्लोजर कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, and I will soon share the written ingredients and everything and the procedure on my Instagram page. So please go and follow me. And I'll also share के अमूल के पेज पे मैं इसकी written रेसिपी शेयर कर सकूँ, because I understand कि मेरे end से बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल डिफिकल्टीज थी, but I just hope that you understand कि it was not in my hand and I tried my best. But thank you so much who all could join, and thank you Amul again for giving me this wonderful and very wonderful opportunity. I think I should They're saying that one person saying that they have missed the recipe. How will they get it? Yeah, so the recipes is actually
एक्चुअली शेयर्ड ऑन दी अमूल पेज. आप अमूल के पेज पे जाइए, वहाँ पे मेरे रिकॉर्डेड रेसिपी जो लाइव सेशन हमने किया है वो रिकॉर्डेड है. अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से वो वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सो आप वहाँ जाके देख सकते हैं. ऑल्सो मैं यही सेम रेसिपी आई विल ऑल्सो शेयर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है global_platter. थैंक यू Moon, थैंक यू Moon, the Taste of India, again for giving me this opportunity, and I wish you guys a lot of love and luck. Goodbye.